बैठी हूँ। Anusha, we are live. Jai Hind, friends. Today we are in Hello. our Vartalap interactive session with the parents of Major Chitresh Waste. अंकल एंड आंटी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और इनसे हम मेजर वेस्ट के बचपन की कहानी, उनकी फौज में ज्वाइन करने की जो पीछे की जो कहानी है, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, ये सारी कहानी आज हम अंकल आंटी से सुनेंगे। Major Chitresh Bes was born on 1st December 1987 in Ranikhet in Almora district of Uttarakhand. रानीखेत नहीं है, ये देहरादून में है born. Okay. देहरादून। Actually in internet I found मुझे ये मिला है. हाँ, ये सब जगह ये डाल रखा है, लेकिन हम लोग रहने वाले थे वहाँ के, अल्मोड़ा के हैं, लेकिन अब मैं यही पोस्टेड रहा तो वो यही पैदा हुआ। Thank you uncle, thank you so much, thank you auntie. Son of a retired police inspector Sri S.S. Best and Srimati Rekha Best, Major Chitresh Best had an elder brother Neeraj and younger sister Shruti. Major Chitresh joined the army after his graduation and was commissioned into 55 Engineering Regiment. Hanji? After 12th, he joined TES, Technical Entry Scheme. Graduation Graduation he completed. आर्मी में। एक काम करते हैं, हम इंटरनेट से पढ़ना छोड़ देते हैं, हम आपसे ही सुनते हैं। आंटी, हम आपसे शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। I think there is some technical issue, right? हम वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं अंकल आंटी, कोई बात नहीं। आंटी, हम आपसे ही शुरू करेंगे। आप मतलब मेजर बेस्ट के बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन में तो बहुत चंचल और इस तरह से बहुत शरारती। डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लियर आउट करना। डेट ऑफ बर्थ उसके 1/12/1987 देहरादून में ही पैदा हुआ वो, और उस समय मैं यहीं था देहरादून में, जो हमारी पुलिस स्टेशन है कोतवाली, उसमें मैं था, तो तब वो यहाँ यहीं पैदा हुआ। उसके बाद उसकी स्कूलिंग भी यहीं की है देहरादून की, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में। उसने 2005 में 12th की थी। अच्छा। हाँ। अंकल आंटी, भैया भाभी या फिर श्रुति भी अगर आ सके आप लोगों के साथ तो अच्छा होगा। जहां आप लोगों को तकलीफ होगी अंकल आंटी, जहां आप लोगों को तकलीफ होगी आप चुप हो जाना। आप लोगों को हम ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है, सब यहीं पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो कोई भी बोल सकते हैं उनके बारे में। ये हमारी हाँ, हाय अवंतिका दीदी। हाय। हाँ अंकल, मेजर बेस्ट ने बचपन से ही आर्मी में जाने के लिए सोच रखे थे, या फिर मतलब कुछ इंसिडेंट था जिसके मतलब जो उनको इंस्पायर किया था आर्मी में ज्वाइन करने के लिए? नहीं, उसका शुरू से ही शौक। He was very intelligent in studies and all, and he could have easily cracked IIT or IPS, gone for higher studies. I mean, it was very easy for him because he was a brilliant student throughout. But yes, he had a passion for joining the forces to serve the nation because, our father, so he was in police and he always grew up, seeing him and
following him, the way he walks, the way he talks, the way he's dedicated to his job and everything. So he always idolized Papa, like, you know, like Papa is serving, even he wants to do something good for the society, the people. Yeah, and you know, small things imbibed within him, and he just took it to the next level. And as I told you, like he appeared for many exams, actually, for many competitive exams. He could have easily cracked IIT. He got a very good rating in AIEEE, which is an All India Entrance Engineering exam. He could have easily gotten into any, you know, very good engineering colleges, but he still went for the course. Like he cracked the TES course at the same time, and he still volunteered for it, and he wanted to do it. And I guess it was destiny as well, and his passion that drove him towards it. So yeah, so he basically he followed his passion and ended up here. और जब अंकल सर्विंग में थे तो आपसे वो बहुत इंस्पायर्ड होते होंगे, है ना अंकल, क्योंकि उसको भी फौज में जाना था. हाँ, पापा was one of the driving factor actually, क्योंकि पापा जाते थे और मतलब पापा was always, अगर आप देखेंगे मतलब पापा का यूनिफॉर्म रिकॉर्ड, में. तो he is also known as one of the best officers like हमारे उत्तराखंड पुलिस में. तो like I mean, अगर पापा का रेपुटेशन देखेंगे तो भारत there won't be anyone जो पापा के बारे में नेगेटिव बोलते हैं. पुलिस वालों के बारे में लोग कितना नेगेटिव बोलते हैं, but there won't be anyone who will say anything negative about Papa. So obviously, मतलब there were these values that were imbibed in him through his childhood: honesty, bravery. So yeah. आंटी, दोनों भाइयों में कितना डिफरेंस था, भाई बहनों में? 1 year. 16 month. 16 month. तो लड़ते थे भाइयों, भाई बहन? बराबर थे, तो दोनों पर प्यार भी काफी था, थोड़ा सा लड़ाई भी, मतलब इस तरह से ज्यादा नोक-झोंक थोड़ा बहुत तो होती रहती है भाई, बस वही. अवंतिका दीदी, आपने उनके बचपन की मतलब दोनों भाइयों की या भाई बहन की बचपन की कोई कहानी सुने हैं? बचपन की तो बहुत सारी हैं. दोनों साथ साथ ही जाते थे, साथ साथ उठेंगे, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ खेलेंगे, और तो सोना भी दोनों का साथ साथ होता था, बहुत छोटे जब थे, और साथ ही स्कूलिंग होगी, साथ हर चीज में साथ ही रहे हैं 12th तक. 12th के बाद आफ्टर 12th ये आर्मी में चले गए. ग्रेजुएशन इसकी वहीं से हुई है, ये टेक्निकल इंजीनियरिंग उससे, पूना से, CME पुणे से. और मेरे लिए दोनों बराबर थे. मैं तो घर में कम रहा, मैं तो जॉब में रहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 1981 में सब इंस्पेक्टर एज डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था पुलिस में. तो उसके बाद फिर प्रमोट होते रहे आगे, और आउट ऑफ जहाँ ये लोग यहीं अपना स्कूलिंग करते रहे, हम लोग अलग अलग पुलिस स्टेशनों में स्टेशन अफसर रहे. तो कभी कमी आना होता था, कभी महीने में आ गए, कभी 2 महीने, लेकिन बच्चे ज्यादा मेरे पास ही रहे हैं, तो ये स्कूलिंग इतने अच्छे से दोनों साथ जाएंगे, प्यार से साथ आएंगे. वो बड़े वाले की हेल्प करता था ज्यादा, कि इतनी समझदारी थी उसे शुरू से ही, बहुत ज्यादा. His pet name is Sonu actually, and his brother's pet name is Monu. So they are Monu and Sonu. So when mommy refers Sonu, so she's actually referring to Chitresh. Okay. मैंने सोनू बोला. भाभी, भैया भी है वहाँ पे? भैया भी हैं. भैया भी है, वो ऑफिस के काम भी कर रहे हैं. अच्छा. अगर भैया भी कुछ मतलब अपनी बचपन की स्टोरी शेयर करें, क्योंकि हम लोग ना सिबलिंग्स के दर्द को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझते नहीं, पर सिबलिंग्स का जो बॉन्डिंग है ना, वो कुछ अलग ही होता है, कोई नहीं समझेंगे. हाँ. बचपन से जो साथी रहते हैं, तो अगर भाई कुछ शेयर करते हैं उनकी मेमोरीज. नीरज, आ जाओ बेटे. he's thinking actually, he's got loads. अच्छा. So
thinking which one to choose. क्योंकि कुछ भी या होगा अंडरस्टैंड, जो भी उसमें- आता है, जो भी दिमाग में आ जाए भैया, वी विल हियर मेनी स्टोरीज। आपको एक नहीं बताना है, जितना सारा आप बता सकते हैं बताइए। आ जाओ। हेलो। हेलो भैया। हेलो भैया, आप दोनों दिखते भी बहुत सेम हैं। अच्छा। we're just like friends बचपन से ही, और मैं। So I think you were asking about stories. We do have a lot of stories, but in a situation like these, nothing comes on. Comes to when it comes to say about something, I can't really say anything. जी But I would just say, so like friends, we used to discuss more or less everything. So what goes on in his life, what's the deal with me. So we always shared everything. There are a few times when he obviously, even if they're two individuals, not so there is a clash in thinking. So but he was such a decent guy. Like he knew that obviously, like मम्मी पापा ने आपको बताया, हमें इतना difference था नहीं age में। तो वो छोटा होने के वजह से he used to say कि okay, मतलब he always used to bow down. He used to say कि ठीक है, मतलब he used to give me that respect. मतलब I never expect, I obviously didn't wanted that, but obviously he gave me that kind of respect. Nobody asked him to, but this was his character, so he knew if he was talking to an elder, he knew how to how to pay respect, and then if he is talking to someone younger, then he knew how to care for them and how to guide them. In fact, he was I must say he among us, obviously being an elder one, but he was more sensible when it comes to daily life. थॉरो So, जेंटलमैन। yeah, he was actually, yes. So if anything, any problem, I used to end up in, like, obviously he was a good one. In a family there's a good child and a naughty one. I was a naughty one and he was a good one. Even though he was bubbly, he used to he used to love his life, enjoy it to the fullest. He was a foodie. He used to go around. He knew every joint in there. He knew where to go, what to eat. बोलता रहेगा, मजाक करता So रहेगा। if he's around, you won't be bored if he's around. Even if you have nothing to talk about, so you will never be bored. He always comes up with something, and something funny. He was known for his jokes. Sometimes they were not that great, but then yes, he was known for his jokes, especially for his laughter. Was a loud one. So yeah. I mean, it was. I still don't feel that he's gone. If I be honest with you, I still don't feel he's gone. I still feel him around. I still have this notion that he's somewhere serving. Not here. एग्जैक्टली। I don't know whether it's a human nature or it's just my way of coping with. But I feel myself that he's still around, and then I care not to think a lot about it. He loved his sister, younger Shruti, and so every Rakhi, me and he used to have a competition who was going to give her a better gift. So obviously she was the lucky one receiving all the goodies from our sort of a small competition that who's going to do what for Shruti. But you could see he every time he spoke with me, he was very concerned about her. He used to you know um, I'm more easygoing. I used to say, every jo bhi hoga ho jayega, everything will be fine. But he was a sensible one. He always wanted to, find something better for like I said, he used to care and guide younger ones. So he always used to find something better for her. Okay, ye nahi karna, ye nahi karna. So sometimes he would ask me, ki, tujhe kya lagta hai? I said this to her, and is it right or should I not say some things like that? So, all in all, I can sum up saying he was the sensible one, and I really miss not him not being around. So, yeah. अंकल, मेजर चित्रेश बिष्ट जब
फौज में ज्वाइन कर गए थे तो आपसे सलाह लेते थे, आपसे डिस्कस करते थे वहाँ की बातें, एक्सपीरियंसेस? हाँ, काफी करता था। जब वो गया वहाँ यहाँ IMA में, तब मैं यहीं था, देहरादून में ही पोस्टेड था। बातें तो सारी बातें शेयर करता सारी है, उसको ये है कि जो कॉन्फिडेंशियल है वो वो नहीं नहीं करता था। वो नहीं करेगा। उसके लिए हाँ, कहता हाँ, बात वो तो बिल्कुल। के लिए कहेगा बाद में बात करूंगा। मैं कभी बहुत यहाँ था तो जैसे पूछता हमको था भी कि भाई पूछते थे, ट्रेनिंग में ज्यादा लड़ाई हो रही नहीं हो रही, तो कहता पापा नहीं, ये बाद में बात करें। मतलब ये वो चीजें टाल कोई जाता। उसकी और हमारी बातें जो है दोस्त की तरह होती थी। पिता पुत्र की तरह की। घर में भी आएगा इस तरह से एक फ्रेंड की तरह, और पापा क्या हाल है, बिग बॉस, इस तरह से बातें करेगा, यूं कंधे में हाथ रखेगा, इस तरह से ना पापा से तो फिर ऐसे फ्रेंडली बात करता था जैसे फ्रेंड जैसे करते हैं आपस में, इस तरह से। He was, I mean, his passing out happened from Dehradun IMA. देहरादून, हाँ, 12/6 को हुआ था, 12/6/2010। तो 12 जून। ऑब्वियसली आप सब गए थे क्योंकि आप वही है। हाँ हाँ, गए थे। सब इतना खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, कहता मम्मी आप लोगों को हमने बोला था ना कि थोड़ा टाइम से जल्दी आना, तो मैं पहले मिल लूंगा आपसे, तो फिर आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, इस तरह से ना कि कौन सी रो पर हूँ। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो फिर बाद में बहुत गुस्सा कर रहा कि भाई आप लोग मुझसे मिले नहीं पहले, मैं आपको बिठाता तब फिर मैं जाता, इस तरह से। I mean, it was his passion. Army was his passion. Was something he always wanted to do. ये वो हमेशा से करना चाहता था. और काफी lot of my friends they are also in army. और मतलब when I talk to people, I do realize कि ये जो था he was very serious about his job. It was some he loved his job actually. जैसे हम लोग भी काम करते हैं, sometimes we are happy, sometimes we are not. हमें लगता है कि नहीं अभी let's change, but he was doing something. पहले but वो काम he करता was doing it with a passion. मतलब it was his passion. So if you do something with a passion, obviously he was good at it, whatever he did. उसने so जब भी जो भी काम होता था, मतलब हर चीज बहुत ही बारीकी से समझना। ऑब्वियसली उसका जो फील्ड था इट वाज अ टेक्निकल फील्ड। ही वाज इन TS, इंजीनियरिंग विंग में था, बंगाल 55 इंजीनियर्स में। तो उसका वो था कि उसको अपने ट्रेड से रिलेटेड भी आउटसाइड ऑफ व्हाटएवर ही वाज टॉट, ही वाज ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिंग। मतलब whatever his trade was in the army, so he was always investigating कि maybe we are lacking in something जो हमें मिल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो he always wanted to know more. So मतलब a lot of times I've found him कि जब वो छुट्टी पे भी होता है, a lot of times I found him searching for something on his phone, or maybe some article where he would have जिसमें उसको अपने profession को he can do it more proficiently. Yes, I mean, it was something he loved, and I'm sure if he gets a chance again, he would do it again. भैया एक बात बताइए, जब उनको इंजीनियरिंग में चांस मिला पुणे के इंस्टीट्यूट में, आई मीन हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ, बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि उनको Yeah. फौज की इंजीनियरिंग कॉलेज में चांस मिल गई, तो हाउ वाज ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ? I mean, तो आर्मी से ही वो तो यहाँ देहरादून में था। entry है ना। देहरादून में 1 साल करने के बाद फिर वो जब वहां गया था तो हम लोग उसको बाहर ले गए। so he was very happy. He was thrilled. बहुत खुश था वो। He, you know, from on his face, or in fact, when you if you would have talked to him that time, you could feel, you know, there's an aura around a person when you can feel, you know, if somebody is really very content and happy with himself. So no, he was really happy. When I say happy, I meant like happy from the soul. He was really happy that time. रिजर्वेशन And ट्रेन मुझे से था उसका।
रिजर्वेशन तो उसका cash- ट्रेन से था, तो लेकिन वो कहने लगा पापा वहां घुमाऊंगा आपको सिर्फ बाई एयर में दिल्ली से। एक दिन उनको- फिर हम उनका जो घूमे। फोटो देखा ना, हमेशा लगता है कि ऑलवेज स्माइलिंग, एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही सूदिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही। बिकॉज उनके पैशन और प्रोफेशन मिल भी गया था, तो बिल्कुल बहुत that रेयर होता है always ऐसा that कि- always give a inner satisfaction. Yes, so ये बहुत रेयर होता है। मतलब बहुत लोग ऐसे नहीं होते जिनका पैशन और ट्रेड सेम होता है। Same होता है, For him, it was the absolutely. case. So therefore, his happiness, he was always happy. Not just because that, but that was his personality as well. He was always happy, cheerful about. A lot of times I used to ask him कि इतना खुश क्यों है, क्या हो गया है? मतलब he was always excited about things. छोटी से छोटी चीजों को लेके भी he was excited. भैया एक बात बताइए, आज अगर मतलब आपके परिवार से या आसपास से कोई बच्चा फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरा मैसेज यही रहेगा कि डेफिनेटली वी नीड टू जॉइन द आर्मी, और इट्स स्टिल अ बेस्ट प्रोफेशन. देयर इज नो अदर प्रोफेशन दैट गिव्स यू सो मच प्राइड. ठीक है, we may spend our entire lifetime trying to do something, or maybe we will achieve something, but we will never get to that station where he has already what he has already achieved in such a short lifespan. So my advice, my suggestion and my wishes with everyone जो आर्मी में जाना चाहता है, एंड मैं चाहता हूँ, पर हमें ये करना जरूरी भी है, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर आवर नेशन. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ. जाना चाहिए बेटा फौज में। फौज अगर देश है तब हम लोग हैं, देश नहीं है तो फिर क्या हम हैं। हर आदमी को फौज में जाना चाहिए, मौका बहुत कम मिलता है। कहते हैं ताज जो है ना वो राजा का होता है। बिल्कुल। जो ताज मिलता है वो राजा को मिलता है। पहले जमाने में कहते थे ताज किसको मिलता है, या तो आर्मी वाले मिलता है, या पैरामिलिट्रीज को मिलता है, उन्हीं को तो ताज मिलता है। अशोक स्तंभ सब में लगा होता है ऊपर, अशोक कहाँ मिलता है। तो हर आदमी को जाना चाहिए। तो ये विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हर आदमी को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। बिल्कुल। आंटी, हम दोनों की ही छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक माँ की तरफ से हम लोगों को कुछ एडवाइस दीजिए कि हम भी अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना पाए। कैसे परवरिश दे? एग्जैक्टली। परवरिश तो सब लोग करते हैं, उसी तरीके से की है, लेकिन ये है कि बेटा मेरा खुद ही लायक था, तो हमने कोई वो ज्यादा उस पे वो नहीं किया है। वो खुद ही अपना सारा पढ़ाई सारा सब कुछ खुद कर लेता था। बच्चों पर बर्डन नहीं डालना चाहिए। बच्चे आज के बर्डन हम लोग बिल्कुल नहीं डालते थे। बर्डन जो वो चाहता था हम उसको बदल सकते, लेकिन हमने उसे कभी वो जो चाहता था उसे करने दिया, और वो कभी गलत भी नहीं चाहता था। ये भी नहीं है कि भाई हम किसी चीज के लिए उसे मना करें, लेकिन उसने कभी गलत चॉइस रखी ही नहीं हमारे साथ। तो यही है कि बच्चों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करें। I think Shruti might have a few good बिल्कुल, stories. प्लीज Yeah. श्रुति कम। I'll leave the seat and then she can join in. श्योर। अंकल, आप लोग देहरादून में कहाँ रहते हैं, मतलब लोकेलिटी? हम लोग मेन सिटी में हम लोग नेहरू कॉलोनी है, धर्मपुर एरिया में आता है ये। मेन सिटी। So it's not very far from the center of Dehradun. So I think just 4 kilometers from the actual Ghantaghar. एक्चुअली मैं वहाँ रहती थी, वो कालिदास मार्ग में जो IIRS है ना, रिमोट इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं 2 साल रह चुकी हूँ। अच्छा, आप रह चुकी हैं? तो आप जब हरिद्वार से आएंगे तो बेटा ये रिस्पना पुल के पास ही है नेहरू कॉलोनी। देहरादून इज अ वेरी नाइस प्लेस। मतलब मैं अच्छा। मतलब इट वाज माय फर्स्ट हॉस्टल स्टेइंग। मैं घर से पहली बार गई थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब लोगों को वहाँ का जो माहौल है, बहुत पीसफुल एक सिटी है फॉर स्टेइंग, एंड आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा था देहरादून। देहरादून तो है ही कालिदास रोड वैसे भी अच्छी कॉलोनी, अच्छी लगती है।
So very Up. nice talking to you. So I'll just ask Shruti to Sure, join in. Bhaiya, sure. Thank you Sure, so much. Bhaiya. Sure. Thank you so much. Thank you. Super. Bhaiya. Bollywood, Yeah. Hi, 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 Hello, Shruti. How are you? I'm good. How are you? We are fine. आप हमें कुछ बचपन की मेमोरीज बताएंगे? Bachpan ki memories. I'm a very pampered sister. I just want to say that. मतलब भैया used to pamper me a lot. मतलब भैया कहीं भी पोस्टेड होंगे, बीट जब वो पुणे में थे अपनी स्टडीज कर रहे थे, तब भी he'll make sure that he gets me something when he comes for 10-15 days, so that's something that he always made sure, or he was conscious about that, कि whenever he's here he brings me gifts. उनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद था. That is something that we realized later on also when he used to tease me a lot, and he used to buy me a lot of gifts, and for mummy as well. I mean, he used to buy her a lot of saris. He loved doing it. I mean, होता है ना कि लड़के उतना नहीं करते या लड़कों की पसंद उतनी अच्छी नहीं होती, but he had a very good taste in saris. कहीं भी पोस्टेड रहेगा तो मम्मी के लिए तो लाना नहीं भूलता था. हाँ. मम्मी के लिए हमेशा लेके आएगा और मम्मी से ही घंटों बातें करता रहेगा. जब भी उसे टाइम मिलता था मम्मी से बस उसकी ये बोलते भी थे कि तुम इतना बात क्यों करते हो, क्या बोल रहा था. मैंने कहा बस वो हमारी बातें हैं, हम कर रहे हैं. तो वो घंटों मुझसे बातें करता रहेगा. मम्मी आज ये हुआ था, ऐसा था, ये करा था, आज मैं यहाँ गया था. ऑफिशियली नहीं बताएगा लेकिन वैसी बातें सारी बताएगा. अपनी यूनिट का बेस्ट शूटर भी था. जो उनके एनुअल शूटिंग होती है उसमें हमेशा नंबर 1 रहता है. उसमें या पर राफ्टिंग टीम में था इंजीनियर्स. He was very good in sports from the beginning. मतलब स्कूल के टाइम से ही he always played cricket, hockey, and फिर जब वो आर्मी में भी गए, so he football, long tennis, everything. I mean, there wouldn't be any sport that he didn't play. So he was a very good sportsman as well. अभी कुछ करा. श्रुति, हम आपसे पूछेंगे ऐसी कोई कहानी, मतलब कोई सीक्रेट जो आप आज शेयर करना चाहते हैं? कोई शरारत जो आप लोगों ने आज तक छुपा के रखा आंटी से, अंकल से? नहीं, I would not betray my brother by sharing. That's true. That also true. I'll keep it to myself. Even I have to go and visit him someday. So that's not gonna happen. But yes, there are a lot of stories. The Rakhi stories are every year. I mean, it was a chase for me to find out the exact place where he is in, and especially because most of his time he was in JNK. So it was a lot of I mean, I would not say a problem, but exact address milne mein, the postcodes and all, it used to take a lot of time. And there were 1 or 2 instances as well wherein the Rakhi didn't arrive, and he really loved the festival. I mean, मेरे से ज़्यादा craze उनको रहता था राखी का. मतलब I was like, okay, हाँ भेजनी है, so I'll be prepared 2 months before to find a Rakhi and send it so that it gets on time. But there were 1 or 2 instances wherein it didn't arrive on time because of maybe I sent it late, or maybe there was a glitch in the system. So he was very upset, and there was one time when he was in Pune, while he was doing the engineering, and the first year when he was out of the home. So I was also very small because we have around 5 or 6 years of gap. So I didn't send him Rakhi that year. So that was the first time when he was out of the home, and I didn't send because I mean, I don't know why I didn't send, but I just didn't send. And on that day he called because it was a Sunday, so I think he used to call us on every Sunday, something like that. And he was so upset. उनकी आवाज से लग रहा था कि he was so upset कि he was saying कि बाकी सबकी राखी आई, तूने क्यों नहीं भेजी? And I was like कि sorry, अब मैं क्या करूं? So from that year onwards, I actually made an effort to make sure that it reaches him time. But again, there were 1 or 2 instances wherein it didn't. But I never made sure कि राखी तो time पे पहुंचे, बाकी तो
एंड अगेन गिफ्ट मिलना भी इज वेरी चैलेंजिंग, मतलब उस पे भी एक हफ्ता 2 हफ्ता डिस्कशन होता था कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना देना है। सो ही यूज्ड टू टीज मी अ लॉट, बहुत ज्यादा। मैं बहुत बार रोई भी हूँ राखी पे, बिकॉज ही यूज्ड टू टीज मी, आई डू गिव यू नथिंग एंड ऑल दैट। फिर बाद में 2 घंटे बाद जब मैं रो रो के आई हूँ, उसके बाद मेरा गिफ्ट आ रहा है ना। सो those are few things that I think every brother and sister go through, and mine was no, I would say कुछ अलग नहीं था। एक्चुअली हमें मतलब आज बात करने से ज्यादा लग रहा था कि अगर हम आपके पास बैठ सकते थे। मैंने अभी कभी भी आ जाए, कभी भी आप कभी भी आइए। जब आएंगी तो आइएगा जरूर। जी आप अंकल, यहीं आइए, बिल्कुल यहीं आएंगे, बिल्कुल आप आएंगे। आइए, रुकिए। क्योंकि हमें एक्चुअली लग रहा है कि हम आपको मतलब बात करवा के मतलब दुखी कर रहे हैं आज। नहीं नहीं नहीं, दुखी तो नहीं है, वो तो पेरेंट्स का पेन है, तो थोड़ा तो होता ही है। एब्सोल्युटली आंटी, इट्स एब्सोल्युटली। हाँ, और वो कभी भी हमसे बिल्कुल बोला नहीं जाता है, बिल्कुल भी उसके बारे में कभी भी तो कुछ अंदर से आवाज ही नहीं निकल पाती। बिल्कुल आंटी। दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल। श्रुति, आप एक बात बताइए, ये अंकल अपने काम के लिए तो पोस्टेड रहते थे, घर कम आते थे, तो मतलब आप 3 आंटी के साथ कैसे उस टाइम में, मतलब पापा नहीं है पास में, तो हाउ वाज द डेज? मम्मी से ही तो डरते थे। So normally in every household there's thing कि पापा से डरते हैं लोग। We were very happy when Papa was around because Papa never used to say anything to us. I don't remember a single day या एक ऐसा moment भी जब उनने हम पे shout भी करा। He never do it. He never did it. मम्मी से we used to be very scared because भैया तो अपना सारा काम कर लेते थे। He was good in studies as well, so he didn't really had to do much. But I was not good in उतनी अच्छी नहीं थी, so I used to be very scared. So I was so very happy कि पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पापा नहीं है तो फिर I'll be like, ओहो अभी कुछ डांट पड़ने वाली है इधर उधर। So that was how we got along. But I think most of the time we both were only there because पापा पोस्टिंग में रहते थे, भैया बड़ा वाला भैया फॉरेन चला गया था एंड भैया सीएमई था। So I guess we bonded pretty well. So that's what I can say. If she Actually, wants to disagree, she can. actually in our house also कि पापा से हम डरते नहीं हैं, हम मम्मी से ही डरते थे। अब स्ट्रिक्टनेस तो थोड़ा बहुत बच्चों को अगर सही राह दिखानी है तो करना ही है। और नहीं, जब पापा actually पास नहीं है तो मम्मी को और थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है। तो सब कुछ तो मुझे ही देखना था कि कहाँ पढ़ाई हो बिल्कुल। रही है, कहाँ स्कूल पे क्या कर रहे हैं, सब देखना था। तो Mummy used to be a superwoman. She used to go everywhere with us. PTM हो गया, कहीं extracurricular activities हो गई. So she'll be the one because Papa, because of his the nature of the job also. Absolutely. Because festivals में भी नहीं होते थे, so everything was managed by our mother only. Because हम भी छोटे थे, so everything was looked after by her. So it was a great thing. We really learn a lot from her as well. She has a kind of patience that we feel that even Bhaiya had. So पेशेंस बहुत जरूरी होती है। मैं मतलब जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं और भी रियलाइज कर रही हूँ कि पेशेंस कभी कभी सच में लगता है कि मतलब पीटना बहुत जरूरी है, लेकिन उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना, उसे समझना और समझाना, तब पता चलता है कि पेशेंस सच में बहुत जरूरी है माओ के लिए। वो तो है, पेशेंस तो है, स्ट्रिक्टनेस तो है ही है, लेकिन वो श्रुति को भी बाद में पता चलेगा। वो जब बड़ी हो जाएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा। अपने आप वो चीज पता चल जाता है। अद्रिजा, हमें लगता है कि हम अंकल आंटी को आज और परेशान ना करे तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
नहीं, नहीं, बहुत हमारे अच्छा साथ लगा अंकल आंटी, आप आज हम लोगों को इतना वक्त दिए। और जो हमारे ये आज का वार्तालाप देख रहे हैं, मैं उन्हीं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दर्द है ये कभी कम नहीं होगा। हम बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, बट नहीं होता है। हमारा शायद आदत बन जाता है, हम मतलब पर, लेकिन दर्द कभी कम नहीं होता, वो खालीपन कभी बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे देशवासियों को कि हम इस फैमिली को, पेरेंट्स की दुख और ना बढ़ाए। हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि इन परिवारों को और भी ज्यादा दुख हो। हम कभी इनके दुख कम नहीं कर पाएंगे, पर इनके दुख हम ज्यादा ना कर दे। बहुत आपने इस तरह से समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह से हम लोगों के लिए इतना, सब सारे फैमिलीज के लिए इतना सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप देश पर फैमिली के लिए हम बहुत बहुत थैंक यू हमारी तरफ। नहीं आंटी, नहीं। Thank जय you. हिंद। थैंक जय यू। हिंद। थैंक